Okay, so as you have seen the previous videos, you should know that what polymorphism is, what are the types of polymorphism, and how you are supposed to do the polymorphism. Just in case, so that you people have the revision, I am going to explain it again. Okay, polymorphism obviously is a pillar of hope that is formed from two words. Let me do this. Okay, polymorphism is formed from two words, that is poly means multiple and morphe that means, I know there is a different forms. Okay, now one thing that have multiple forms is called polymorphism, and then in polymorphism there are two types. Number one is method overloading, and method overloading is obviously also known as compile time polymorphism, and also called as static polymorphism. ठीक है, static polymorphism, whatever. Now second one we have is method overriding. So method overriding is also known as runtime polymorphism and also called as dynamic polymorphism. ठीक है. अच्छा, इसके बाद हम लोगों के पास मेथड ओवरलोडिंग हमेशा विद इन द सेम क्लास होती है, मेथड ओवरराइडिंग हमेशा उन क्लासेस के दरमियान होती है दैट हैव इनहेरिटेंस रिलेशन. सो दिस इज़ द टास्क दैट ऑब्वियसली यू पीपल आर गोइंग टू डू. दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ you have this class diagram and you are supposed to implement this class diagram. Now there are certain informations given to you people and certain informations are not there. So the informations that are not there you are supposed to क्या कहते हैं, imagine them, you have to improvise it. Okay, what we want you to do is given there, but what how to do it is up to you, that how you are going to do it. So employee is the super class and the base class, and salaried employee, commission employee, hourly employee are the child classes. If you do read it in a way where there is a relationship between them or not, yes there is, because salaried employee is an employee, commission employee is an employee, and hourly employee is an employee, and base plus commission employee is the commission employee. And these classes, how these classes are going to work, you have to create a payroll system for these classes, where the salaried employee have a fixed salary, that is irrespective of the number of hours they work, they have a fixed salary, monthly salary. Obviously if an employee gets 40,000 he is going to get 40,000. ठीक है. अर्ली एम्प्लॉय की सैलरी आवर्स पे क्रिएट होगी, दैट द अर्ली एम्प्लॉय इज सपोज टू वर्क 40 आवर्स पर वीक, एंड 40 आवर्स पर वीक के बाद अगर वो ग्रेटर देन 40 आवर्स काम करता है तो वो सारे नंबर ऑफ आवर्स जो ग्रेटर देन 40 होंगे दे विल बी कंसीडर्ड एज ओवर टाइम. कमीशन एम्प्लॉय में आपके पास नंबर ऑफ परसेंट ऑफ सेल्स है, जैसे लेट्स से आप कहते हो एवरी सेल का 2% कमीशन एम्प्लॉय को मिलेगा. ठीक है, 2% कमीशन हम उसको देंगे. अब वो अगर हर 100 रुपये की कमीशन करता है तो उसको 2 रुपये मिलेंगे, और अगर वो 1000 रुपीज़ की करता है तो उसे 200 मिलेंगे. समझ आ रही है. एंड बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय क्या करता है, उसकी एक बेस सैलरी है, लाइक अगर वो कोई कमीशन नहीं भी लेता तो ही इज़ गोइंग टू और शी इज़ गोइंग टू गेट दैट बेस पे, बट अगर वो कोई सेल करता है तो उस सेल का कोई परसेंटेज क्राइटेरिया होगा दैट विल बी एडिड इन द बेस पे. तो यू हैव टू ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट दीज. तो स्टेप वाइज गाइड जो है हमारे पास दैट इज़ देयर, कि आपके पास एम्प्लॉय क्लास ऑब्वियसली सुपर क्लास है, तो इट विल हैव द कॉमन बिहेवियर, दैट इज़ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, CNIC, getter and setter method for each attributes, and then a parameterized constructor. Obviously these are going to be the private ones. So parameterized constructor that is going to assign the values to each variables that you have declared, and then getter method so that you can print the values, and then default to string method so that you can print the values. Now this
these two functions are going to be overridden in the class, that is the child class. Earning, obviously earning is going to be dependent on the behavior of each employee or the nature of each employee. तो ये सब चीज़ें क्या होंगी आपके चाइल्ड क्लास के अंदर जाके ओवरराइड होंगी. Salaried employee में anything you want or variable, but only thing that will be added is the weekly salary, and you know that 40 hours के हिसाब से आप weekly salary will be whatever the weekly salary is of your employee. एंड उसके बाद आपकी सैलरी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. तो ऑब्वियसली आप इफ एल्स कंडीशंस यूज़ करोगे. ऑब्वियसली यू नो दैट कि व्हेन एवर देयर इज़ अ इनहेरिटेंस इन्वॉल्व, तो आपके पास पैरामीटराइज और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दोनों होते हैं, एंड यू कॉल देम इन अ चाइल्ड क्लास. द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ अ बेस क्लास इज कॉल्ड इन अ चाइल्ड क्लास, so that you can assign the values as well, ताकि हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉलिंग एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का जो भी इशू है वो ना हो. मेथड ओवर राइडिंग ऑब्वियसली आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, एंड सैलरीड एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करने के बाद आप सुपर डॉट टू स्ट्रिंग भी कॉल करोगे, कनकैटिनेट हो जाएगा, सो दैट यू विल हैव ऑल द वैल्यूज़ और द डेटा टू बी प्रिंटेड अगेंस्ट द सैलरीड एम्प्लॉय. आर्ली एम्प्लॉय के अंदर आपके पास वेज और आवर्स की दो वेरिएबल्स ऐड होंगे. वेज आप बताओगे हर एम्प्लॉय का वेज क्या है और उसने कितने आवर्स काम किया था, और वेज और आवर को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, अर्निंग आ जाएगी. और उसके बाद आपके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा. ऑब्वियस सी बात है, आप उसको सेम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे, एंड दिस इज द फॉर्मूला यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट फॉर द अर्निंग ऑफ द अर्ली एम्प्लॉय, एंड दिस इज द फंक्शन दैट यू आर गोइंग टू ओवरराइड फॉर प्रिंटिंग द वैल्यूज. नाउ फॉर द कमीशन एम्प्लॉय में आपको एक ग्रॉस सेल्स और कमीशन रेट बताना होगा. आप हर एम्प्लॉय का कमीशन रेट अलग रखोगे. जैसे लेट से कमीशन एम्प्लॉय 1 का हमारे पास क्या कहते हैं, कमीशन रेट वाज 10%, एंड लेट से कमीशन एम्प्लॉय 2 का कमीशन रेट वाज 8%, और ग्रॉस सेल बताएंगे कि उस कमीशन एम्प्लॉय ने टोटल ग्रॉस सेल कितनी की थी. तो ग्रॉस सेल के हिसाब से आप उसका बता रहे होगे कि दिस इज़ द कमीशन, एंड द अर्निंग ऑफ कमीशन इज़ दैट कि वट एवर द ग्रॉस सेल इज़, उसको वट एवर द परसेंटेज इज़ देयर. जैसे आपकी परसेंटेज है 0.2%, 0.3%, लेट से 0.48%, सो यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद द ग्रॉस सेल सो दैट यू गेट द परसेंटेज क्राइटेरिया और द अर्निंग ऑफ वट एवर द कमीशन एम्प्लॉय इज़ destined to earn or is supposed to earn. उसके बाद आपके पास होगी बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय. तो आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ बेस एम्प्लॉय और बेस एम्प्लॉय के बाद बेस एम्प्लॉय जो है बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय में कमीशन के जो ये फंक्शंस हैं दैट इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड एज द सेम, एंड देन बेस सैलरी के साथ आप क्या करोगे, अर्निंग ऊपर वाली कॉल करोगे, दैट इज़ द बेस क्लास इज अर्निंग, एंड देन यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट. ओके, उसके बाद आप इन सबको जब ऑल टुगेदर मेन में कॉल करोगे तो यू आर सपोज टू क्रिएट योर मेन लाइक दिस सो दैट वी नो हाउ इट इज़ वर्किंग, व्हाट आर द आउटपुट्स, नंबर एम्प्लॉयज एंड स्टफ. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज़ दिस क्लास डायग्राम वेयर देयर इज़ एसोसिएशन, एग्रीगेशन एंड इनहेरिटेंस रिलेशनशिप. So circle and rectangle are the child classes of the shape class. The shape class is the base class. Now point is a class that has x and y, that has the information of the x and y axis of shape, and then shape will have that point. Obviously every shape will have a point on the graph that is x axis and y axis, so this is going to be variable that is going to be passed in a shape class so that आप shape को बता सको कि भाई वो किस point पे lie करती है. Shape array is a class that consists an array or the list of the shapes that are being created in the system. तो shape list obviously shape class की एक array list या फिर vector list होगी, and shape array आपके पास constructor होगा जो size लेगा. ठीक है. अब आप shape add कर सकते हो, add shape आपका s लेगा, और इसके अंदर आप क्या कर रहे होगे, shape list को call करोगे. तो whether the shape is added or not आप true कर सकते हो. आप सर्कल काउंटर और एवरेज रेक्टेंगल निकाल सकते हो. सर्कल का के कितने सर्कल हैं आपको पता होना चाहिए, कितने ऑब्जेक्ट सर्कल के ऐड हुए, कितने ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल के ऐड हुए. तो गेट एवरेज रेक्टेंगुलर एरिया भी आ सकता है कि मल्टीपल एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स को लेके आप उसका मिनिमम निकाल के एवरेज निकाल के बता दो कि मेरे पास एवरेज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ दिस. और ऐसा आपके पास एक फंक्शन होगा जो सारे रेक्टेंगल्स को रिमूव कर देगा. इट मीन्स दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर ऑफ आर विल बी रिमूव्ड. ठीक है. और उसके बाद एक टू स्ट्रिंग का मेथड होगा दैट यू आर गोइंग टू यूज टू ऑब्वियसली प्रिंट द वैल्यूज. सो दिस इज द क्लास दैट यू आर गोइंग टू डू. आपकी पॉइंट की क्लास गेट एक्स गेट वाई बनेगी. दिस इज द क्या कहते हैं फॉर्मूला टू गेट द
स्क्वायर रूट ये डिहिक्स्ट्रा पाथ होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. सो यू आर गोइंग टू डू दिस. एंड शेप क्लास के एट्रीब्यूट्स आपको बता रहा है कि क्या है. यू आर सपोज टू रीड दीज लाइन सो दैट यू गेट द आइडिया कि हाउ द थिंग्स आर वर्किंग इन रेक्टेंगल एंड शेप एरे के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन क्या क्या काम करता है. शेप 2b के एक्सरसाइज 2b के अंदर यू हैव टू पुट एवरीथिंग इन द एवरीथिंग टुगेदर इन अ टेस्ट शेप क्लास. एंड आपको बताना होगा कि शेप्स एरे सिर्फ और सिर्फ 20 ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं. सो यहाँ पे आपकी मर्ज़ी, आप एरे बनाते हैं, आपकी मर्ज़ी आप एरे लिस्ट बनाते हैं, लेकिन उस पर लूप चला देते हैं कि 20 से ज़्यादा कुछ ना जाए. सो इट्स अप टू यू वट क्या कहते let's say what approach you want to follow. So it's obviously your choice. बाकी आपको न्यू शेप ऐड करने के लिए आपके पास this is the options or the menu that you are going to do. User will do 1 2 3 4 5 6 and user will select it. So do while के थ्रू आप काम कर रहे होगे और उस do while के बाद यहाँ फिर आप स्विच केस से काम कर रहे होगे. up to you, बस मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम होगा. एंड इस मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के अंदर एवरी मेन्यू ऑप्शन इज़ गोइंग टू वर्क द वे इट इज़ सपोज टू वर्क. ठीक है. अब रिस्पेक्टिव फंक्शंस कैसे कॉल करने हैं, क्या करना है, ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी योर जॉब टू डू इट. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल दैट यू पीपल आर सपोज टू डू. I hope you understood the polymorphism concept, and if you have any queries, obviously we are going to discuss it in the class. So inshallah upcoming Monday class we are going to discuss it, and then we are going to further talk about it. Till then, Allah Hafiz.